Okay students, till now we have classified our real numbers on the basis of their decimal expansion. Okay, we have seen the two types of numbers, whether they are terminate or whether they do not terminate. Okay, so when the decimal expansion terminate after some time, then it is called the terminating rational number. But when the decimal expansion do not terminate but a block of digit repeat itself, then it is called the non-terminating reoccurring decimal expansion. But there is also a case when the decimal expansion do not terminate and do not repeat its digit after the decimal, then they are called the non-terminating non-reoccurring decimal expansion, and these non-terminating non-reoccurring decimal expansions are called irrational number. Okay, so now we will represent our rational numbers in the form of p over q. So it is very easy to represent rational number in a form of p over q which are terminating. Okay, but there is a trick to represent the rational number which are non-terminating but reoccurring into p over q. So there is a little bit quite difficult, not we can say the difficult, it's quite tricky to represent non-terminating but reoccurring decimal expansion in the form of p over q. So let's see example 6. Here you have to show this number like 3.142678. okay, you have to show this rational number into the form of p over q. okay, so here you can see that this number is a terminating rational number, so it's very easy to represent this number in form of p over q. okay, you simply write the number and you will have to count that how many digits there are after the decimal. 1 2 3 4 5 6. okay, there are 6 digits after the decimal, so you simply you can remove this decimal and just put 1 and zeros 1 2 3 4 5 6, 6 zeros after removing the decimal from the numerator. So denominator will be 1000000. okay, so the digit after the decimal you have to count and put exactly the number of zeros into the denominator as the number of digit after the decimal. okay, so what we have to do कि आपको decimal के बाद की digit को count करना है और जितनी आपकी digit हैं उतनी ही आपको क्या लगानी है, zeros लगानी है denominator में. so ये बहुत simple है जो आप अपने बहुत टाइम से करते भी आ रहे हैं. तो रेशनल नंबर जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं उनको p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कोई आपका टफ काम नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है तो उसमें डेसिमल हटा के नीचे क्या आता है, आपका टेंस की फॉर्म बनती है. ओके, उसमें 10 ज़रूर आएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद अगर आपका डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद आपकी एक डिजिट है तो आपकी एक ज़ीरो आएगी, यानी कि उसमें 2 और 5 जो होंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे. जैसे कि आपका 10 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप इसे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. ओके, तो आप एक 10 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 5. तो आप इस चीज़ को आप अपने फर्दर क्लासेस में भी देखेंगे कि जो आपके 2 5 के जिसमें आपके 2 और 5 के पेयर आते हैं वही क्या होते हैं, आपके टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं. जिसमें 2 इंटू 5 का पेयर नहीं आता है वो आपके टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि आप नंबर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा और कौन सा आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा. ठीक है, तो एग्जांपल 6 आई होप सबको समझ में आ गया होगा. सिंपल सी बात है, जितने आप डेसिमल के बाद डिजिट होंगी उतनी आपकी नीचे क्या लग जाएंगी,
ज़ीरो लग जाएंगी। नाउ वी विल लुक फॉर द एग्जांपल 7। इसमें आपको गिवन है 0.333, यानी कि इसको जो आपकी डिजिट रिपीट होती है डेसिमल के बाद में, जो जो जितनी भी डिजिट आपकी रिपीट होती हैं उसको बार बार इस फॉर्म में ना लिख के हम क्या करते हैं, जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर आपकी एक डिजिट रिपीट होती है तो आप एक डिजिट के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस this non-terminating rational number into the form of p over q. So this is not as simple that just you remove the decimal and put zeros into the denominator, because you don't know how many digits occurring after the decimal, so you can't remove the decimal like this as you have done before. Now what you have to do, you have to assume like the given number equal to x, ठीक है। आपने एज्यूम किया कि जिसको आपको डेसिमल जो एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है उसको जिसको आपको पी ओवर क्यू में रिप्रेजेंट करना है, जिसको आपको p ओवर q में रिप्रेजेंट करना है, उसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये देखना है कि एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आप 10th क्लास में इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि आपकी कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो हियर यू कैन ईजीली सी दैट कि 1 डिजिट आपकी सिर्फ रिपीट कर रही है, तो आप क्या करेंगे, उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट आपकी रिपीट कर रही है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी, सो दैट दे रिमेन इक्वल। ओके, सो अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.33333 लाइक दिस। ओके, तो आप जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.333। ओके, इस तरीके से आपका ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे क्या ऐसे बना रहेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि आपको जो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही थी उसमें से एक डिजिट जो है वो आपकी पॉइंट के इधर आ जाएगी जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको इसका केस समझ में आएगा। हम इस वाले मेथड को भी आप कर सकते हैं, लाइक आप एक और मेथड कर सकते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए और आप इसको इक्वेशन मानिए 2, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया है, ये इसको जो आपको गिवन था उसको आपने x माना और इसमें आपने 10 की मल्टीप्लाई करी, तो जो आपके पास आया उसको आपने इक्वेशन 2 माना। अब इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x माइनस एक्स। ओके, 10x माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या है 3.3333 लाइक माइनस, आप यहाँ पे क्या है, इधर की राइट हैंड साइड में क्या है 0.3333। ओके, जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10x माइनस एक्स, यानी कि 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इस वाली टर्म में से आपको ये वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 3.33 वाली टर्म में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 0.333 लाइक दिस। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये पॉइंट वाली के बाद की जो डिजिट देखो दोनों में सेम है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, 3.33333 इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे आप है 0.333, तो इस तरीके से जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट हैं वो सारी की सारी सेम है, तो डेसिमल के बाद क्या बच जाएगा, सारे में 0 बच जाएगा एंड यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, एंड 3 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि हमारे डेसिमल के बाद वाली डिजिट जो हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। नाउ यू कैन ईजीली सॉल्व दिस। 9x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। तो ये इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे देन इट विल बिकम 1/3। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1/3, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आपको x गिवन जो आपको गिवन है उसको आप x मानेंगे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही होंगी तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ओके, नाउ वी विल सी एग्जांपल 8। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो नंबर गिवन है यहाँ पे डेसिमल के बाद आपका 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप 1.27 बार। तो इसको आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है
और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है ही। तो अब आपको मैंने बताया था कि जब 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम, जिसको आपको पी ओवर क्यू में बदलना है उसको आप क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। दैन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2727। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.27 बार, ओके। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू keep in your mind that after the decimal the digit is like 272727. You will not say this like 1.27, okay. So remember this point into your mind. Some students say like 1.27 bar. This is a incorrect representation of this number. After the decimal each digit is speaking like only once, like 1.27, okay. So इसको हम x को क्या लिख सकते हैं, 1.27 बार, okay. Now what we have to do, as the 2 digit are repeating after decimal, we multiplied by 100 in left hand side and right hand side. So we have x equal to 1.2727. Then when we multiply 100 in left hand side, what we get, 100x. And when we multiplied 100 by in right hand side, then what we get, तो ये जो डेसिमल के जो है वो आपका 2 प्लेस इधर चला जाएगा, तो इधर आपका क्या बचेगा, 127, फिर उसके बाद क्या बचेगा आपका 2727, लाइक दिस, ओके। तो व्हाट वी गेट 127.2727, ओके। नाउ अब ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ये बुक का मेथड है कि इसको आप जो आपका x गिवन है हम इसमें से वो x बनाने की कोशिश करेंगे, 1.2727, और इसको क्या लिख दिया हमने, 126, ओके। तो आप ऐसे ना करके आप इसको इक्वेशन 2 मानिए, और जो आपको x गिवन है आप इसको क्या मानिए, इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। तो 2 क्या है आपकी, यहाँ पे 100x है, 100x में से आप क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे, इक्वल टू में आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या था आपका 127.2727, लाइक दिस, माइनस यहाँ पे क्या है आपका x इक्वल टू क्या है आपका 1.272727, लाइक दिस। तो 100x में से x माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट 99x इक्वल टू, अब देखो डेसिमल के बाद जो है 2727 है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है 2727 है, तो डेसिमल के बाद वाली तो सारी डिजिट 0 हो जाएंगी। व्हाट वी गेट इज़ 126 में से आप जब डेसिमल वाला पहले वाला नंबर जो 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 126, ठीक है। आपके पास था 127.272727, लाइक दिस। एंड x की वैल्यू क्या है आपकी 1.272727, लाइक दिस। जब डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है तो डेसिमल के बाद तो सारे में 0 बन जाएगा। या 127 में से 1 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 126, ओके। तो व्हाट वी हैव 99x इक्वल टू 126, देन x विल इक्वल टू 126 ओवर 99, ओके। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14/11, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स प्रोसेस करके चेक भी कर सकते हैं कि जब आप 14 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.2727। तो यू कैन रीचेक योर आंसर इन योर एग्ज़ाम एंड यू कैन ऑल्सो रीचेक नाउ, सो डू इट बाय योर सेल्फ। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल 9, ओके। एग्ज़ाम्पल आपके 9 में आपको 0.235335, ठीक है, इसमें आपको इसको p ओवर q में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, 3535 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.235 बार, ओके। तो हमें वही प्रोसेस करना है, हमने क्या माना, इसको x मान लिया, किसको 0.235 बार, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाली जो पहली डिजिट है ये रिपीट नहीं कर रही है, उसके बाद वाली डिजिट जो है 35 वो आपकी रिपीट करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको पता है कि अगर 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो multiply both side by 100 क्यों, as 2 digits are repeating, ओके। सो व्हाट वी गेट, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए,
नाउ 100x इक्वल टू, जब आप 0.23535 में इस तरीके से ये नंबर चलेगा और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100x इक्वल टू, ये जो आपकी 2 डिजिट हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो आपके पास आएगा ये 23.535353 लाइक दिस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट जो होता है डेसिमल क्या हो जाता है, वो आपका 2 पॉइंट इधर आ जाता है। तो 23.5353 इस तरीके से आपके पास 100x की वैल्यू आएगी। इसको आपने इक्वेशन 2 माना, तो अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 100x माइनस यहाँ पे क्या है आपका x, ठीक है। 2 में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो 100x में से x को माइनस करेंगे। एंड राइट हैंड साइड में क्या है 23.535335 लाइक इस तरीके से नंबर है। इसमें से आप किसको माइनस करना है, आपको 0.2353535 इस तरीके से नंबर को माइनस करना है। तो 100x में से x को माइनस करेंगे, व्हाट यू गेट 99x। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो है यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लाइक 23.535353 इस तरीके से है। और यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद में, यहाँ तो डेसिमल से पहले 0 है और उसके बाद है आपका 235353 इस तरीके से है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये देखो ये सारी की सारी जो टर्म है आगे की वो 0 हो जाएंगी। बस यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो है वो 2 है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो व्हाट यू गेट इज़ 3। यहाँ पे डेसिमल है और 23 में से 0 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 23। ओके, तो व्हाट यू गेट 23.3। तो 99x इक्वल टू क्या आ गया आपका 23.3। अब यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपॉन 99 इस तरीके से आ जाएगा। और आप इसमें डेसिमल हटा के नीचे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो 990 आएगा आपका। और जब आप इसको दोबारा से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा होगा, यही आ रहा होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 233 अपॉन 990। ओके